Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is transport in plants. In today's lecture, we will study about a very interesting process, that is transpiration. So let's start. Okay students, let's continue chapter 11, that is transport in plants. Students, in the previous lecture we studied about a very interesting process, that is ascent of sap. We studied that ascent of sap takes place by transpiration, and we also studied about the cohesion tension theory, that is water has a very unique property that it has adhesion and cohesion. So because of that, the ascent of sap takes place. Actually a force is created due to transpiration in the upper part of the plant body, and because of that the ascent of sap takes place. Water जो है स्टूडेंट हमने देखा कि अपनी इस यूनिक प्रॉपर्टी के कारण वो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाता है, जिस कारण के वाटर जो है उसका अपटेक होता है. So transpiration जो है student, it is playing a very important role in the ascent of sap. In today's lecture we will study about transpiration, the different types of transpiration, and why transpiration is important for the plants. So let's start transpiration. Okay students, so let's define transpiration first. Transpiration is loss of water from the aerial parts of the plant in the form of water vapors. So जब प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उसमें से वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. स्टूडेंट्स, जो 97-98% वाटर जो है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें से 97-98% वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और वेरी लेस वाटर, इवन लेस देन 2% वाटर जो है दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ओके, so only 2 to 3% of the absorbed water is utilized by the plant for its various metabolic activities, and remaining जो 97 से 98% water जो है that is evaporated by the process of transpiration. So let's study different types of transpiration जिसके कारण water जो है उसका loss होता है. So students, there are mainly three type of transpiration. First one is known as stomatal transpiration, which takes place with the help of stomatas. Second is cuticular transpiration जो कि cuticle से होता है, and third is known as lenticular transpiration which takes place through the lenticels. तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो. On the basis of the passage, वो कौन सा पैसेज है, रास्ता है जिससे कि प्लांट अपना वाटर लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो अगर वाटर्स जो है वो लूज हो रहा है फ्रॉम द स्टोमेटा, देन इट इज स्टोमेटल. अगर क्यूटिकल से वाटर का इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपीरेशन हो रही है, तो वो क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन है. और अगर लेंटिसेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन इज नोन एज लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन. Okay, let's study them one by one in detail. First type of transpiration is known as stomatal transpiration. So student, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आप एक स्टोमेटा देख सकते हो. सबसे पहले स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे पोर्स हैं. They are very minute pores which are present in the epidermis of the leaves and the stem. So जब हमारा water loss जो है इन pores के through होता है, through the stomata, and that is known as stomatal transpiration, right? This type of transpiration occurs in the presence of the sunlight, क्योंकि day time में क्या होता है, stomata जो हैं वो खुल जाते हैं, stomata open होते हैं, तो वाटर लॉस होता है. और नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, सो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन है, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. और इस ट्रांसपीरेशन से मोर देन 90% वाटर जो है वो इस मेथड से होता है. दैट इज ट्रांसपीरेशन जो स्टोमेटा से हो रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन. सो यहाँ पर आप स्टोमेटास देख सकते हो जो कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द leaves and also in the stem. So stomatal transpiration जो है that takes place through these tiny pores which are known as stomatas. Okay.
नेक्स्ट इज द क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज क्यूटिकल? स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी एनाटॉमी स्टडी किया और हमने देखा कि जो क्यूटिकल है, एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर है जो कि क्यूटिन से मिलकर बनती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल. सो ट्रांसपीरेशन जो है जब क्यूटिकल से होगी या क्रैक्स हैं क्यूटिकल में, तो उस ट्रांसपीरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ये ट्रांसपीरेशन डे नाइट दोनों में होता है और इसमें सिर्फ 5 to 10% जो है वाटर लॉस होता है विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन. और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन तब होगा जब क्यूटिकल जो है वो थिन होगा, क्योंकि थिक क्यूटिकल जो है तो उससे ट्रांसपीरेशन नहीं होगा और बहुत कम होगा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इफ द क्यूटिकल इज thick. So this type of transpiration say account only for 5 to 10% of the total transpiration that is taking place. So यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये मैंने एपिडर्मिस बनाया और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो एपिडर्मिस सराउंड हो रहा है, दैट लेयर इज नोन एज क्यूटिकल. ओके. Third type of transpiration is known as lenticular transpiration. Lenticular transpiration जो है, this takes place with the help of lenticels. स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये लेंटिसेल्स नज़र आ रहे हैं. सो लेंटिसेल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे रीजन्स होते हैं बार्क के ऊपर और यहाँ पर लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत लूजली अरेंज सेल्स हैं यहाँ पे. सो इसके थ्रू भी ट्रांसपीरेशन होता है और इस टाइप की ट्रांसपीरेशन को हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. ठीक है. सो ये स्मॉल ओपनिंग है इन द कॉर्की टिश्यू. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन इज सेट टू बी लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. और बहुत कम ट्रांसपीरेशन जो है, बहुत कम वाटर लॉस जो है, जस्ट 0.1% ऑफ वाटर जो है दैट इज लॉस्ट बाय दिस मेथड ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप के ट्रांसपीरेशन स्टडी किए, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, देन वी स्टडीड अबाउट क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड थर्ड वन इज द लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. और हमने देखा जो मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. So then it is very important. Now we will study about the structure of the stomata, जो कि ट्रांसपीरेशन में इतना important role जो है वो प्ले कर रहे हैं. Now students, stomatas जो होते हैं वो जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होते हैं, स्टोमेटा अपर साइड पे भी होते हैं और लोअर साइड पे भी होते हैं, पर ज़्यादा अमाउंट जो है स्टोमेटा का वो लोअर एपिडर्मिस में होता है. राइट. सो लेट अस स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन डिटेल. सो स्टोमेटाज, व्हाट आर स्टोमेटा? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टोमेटा बहुत माइन्यूट पोर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम. स्टोमेटा क्या कर रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो प्लांट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट इज गिविंग अस ऑक्सीजन. सो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. सो दैट गैसियस एक्सचेंज जो है दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. राइट. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स लिए हैं. एक डाइकॉट का स्टोमेटा है, एक मोनोकॉट्स में स्टोमेटा है. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टोमेटा है स्टूडेंट वो क्या है. 2 तरह के स्पेशल इसके पास किडनी शेप्ड सेल्स हैं. जो डाइकॉट में देखो, ये जो अंदर वाले 2 सेल्स दिख रहे हैं इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. सो ये किडनी शेप होते हैं गार्ड सेल्स इन द केस ऑफ डाइकॉट्स. और अगर आप मोनोकॉट्स में देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ गार्ड सेल्स बने हैं. ये क्या है? डम्बल शेप्ड हैं. सो ये आप इनकी शेप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये किडनी शेप्ड है और यहाँ पर ये डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट, ये दोनों जो गार्ड सेल के बीच में आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है दैट इज नोन एज स्टोमेटल पोर. सो दिस इज ऑल्सो स्टोमेटल पोर. यहाँ पे ये मोनोकॉट का स्टोमेटल पोर है और ये जो है ये डाइकॉट का स्टोमेटल पोर है. राइट. उसके बाद जो ये गार्ड सेल्स हैं उसके बाहर आपको ये ग्रीन कलर के सेल दिख रहे हैं जो कि एपिडर्मल सेल से थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं. ठीक है. इमीडिएटली जो गार्ड सेल्स को सराउंड कर रहे हैं दे डिफरेंट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल. सो ये जो सेल्स हैं इनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं. ठीक है. इनको असेसरी सेल भी बोला जाता है और इनको सब्सिडरी सेल्स भी बोला जाता है. एंड दीज आर द नॉर्मल एपिडर्मल सेल जिसमें कि स्टोमेटा है. सो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट, जो कि आपको लेटर ऑन जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो. जो स्टोमेटा का जो आपको इनर, ये जो ब्लैक में दिख रहा है इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है और जो आउटर वॉल होता है स्टोमेटा का वो थिन होता है. ठीक है. लेट्स सी इट वंस अगेन. नाउ इट्स सी दिस ब्लैक वाला जो इनर वॉल है, दिस इज द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, दिस वन, एंड दिस इज द आउटर वॉल. सो जो इनर वॉल है, आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है. और जो इनर वॉल होता है जो कि पोर के पास है, ये हमारा क्या था? दिस इज द पोर.
ये पोर है, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है। सो ये जो इनर वॉल है ये थिक होता है और आउटर वॉल जो होता है वो क्या होता है, वो थिन होता है, ठीक है। सो आउटर वॉल इज थिन, राइट। सो यहाँ पर हमने डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों स्टोमेटास का स्ट्रक्चर देखा। बेसिकली मोनोकॉट में भी सेम स्ट्रक्चर है, बट उसमें उसका गार्ड सेल का आप शेप देख सकते हो, तो गार्ड सेल्स जो हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं। और दूसरी बात, जो गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर फिल्ड विद, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। सो गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों तरह के स्टोमेटास, डाइकॉट एंड मोनोकॉट का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेट्स सी कि जो स्टोमेटास हैं वो किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से स्टोमेटास जो हैं वो क्लोज होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर एक टर्गर क्या होता है, जिससे वो टर्जिड होते हैं, तो एक टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है। टर्गर प्रेशर के चेंजेस के कारण स्टोमेटा जो हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, जो वाटर है वो एंटर करता है फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स इनटू द गार्ड सेल्स। सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस हो रही है। जब वाटर जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या होंगे, टर्जिड हो जाएंगे, उनमें वाटर आ गया। जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा, स्टोमेटास जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो जब टर्गर प्रेशर जो है गार्ड सेल का हाई होता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। और जब उसमें क्या होता है कि जब डे टाइम के ऊपर हमने देखा कि वाटर एंटर जब करेगा उससे गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाएंगे और जो स्टोमेटा जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। सो गार्ड्स जब टर्जिड होंगे तो एक फोर्स आएगा आउटर वॉल जो है वो थिन है, इनर वॉल जो है वो थिक है, तो वो एक कॉन्केव शेप का वॉल बन जाएगा, ठीक है, कॉन्केव बन जाएगी वॉल। और कॉन्केव बनने से क्या होगा कि जो स्टोमेटास जो हैं वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात को क्या होगा कि जो गार्ड सेल जो है, नाउ वाटर एंटर्स द सब्सिडरी सेल्स, वापस उल्टा हो रहा है, गार्ड सेल से वाटर कहाँ जा रहा है, सब्सिडरी सेल जा रहा है। तो जब ऐसे होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल्स क्या होंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से पानी निकल गया, पानी जो है एक्सऑस्मोसिस हो रहा है। नाइट में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो गया ना गार्ड सेल से, तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे, उनके जो इनर थिक वॉल्स हैं वो पुश हो जाएंगे टुवर्ड्स द इनर साइड, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जब वॉल अंदर की तरफ पुश होंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ओके, सी दिस डायग्राम, नाउ इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। ये स्टूडेंट्स हमारे दोनों गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स में क्या है, स्टोमेटा ओपन है। स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है, गार्ड सेल्स जो हैं टर्जिड हैं, एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है। जब वाटर एंटर होगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो अंदर वाली वॉल है वो कॉन्केव हो जाएगी और स्टोमेटा देखो वो खुल गया। रात को क्या होगा, वाटर जो है वो लॉस हो गया, बाहर आ गया वाटर, वाटर के लॉस होने से जो गार्ड सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और अंदर वाली जो थिक वाल है वो अंदर की तरफ देखो पुश हो रही है, और स्टोमेटा क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। सो ये आपको डायग्राम है जो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास जो है वो शो कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरीज हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास को एक्सप्लेन करती हैं। वी हैव टू थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी जो है उसको हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कहते हैं, जो स्टीवर्ट ने दिया 1964, एंड सेकेंड थ्योरी जो है दैट इज नोन एज पोटेशियम आयन पंप थ्योरी गिवन बाय लेविट 1974। सो फर्स्ट जो हमारा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है जो स्टीवर्ट ने दिया, लेटर ऑन स्टूडेंट इसको जो था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। लेट अस सी ये क्या कहता है हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो है इसमें हमने देखा, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इसमें जो है एक कन्वर्जन पे ये बेस्ड है कि किस तरह से स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, स्टार्च में कन्वर्ट हो रही है। सो लेट अस स्टडी इट। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस क्या कहता है स्टूडेंट, डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम स्टार्च ऑफ द गार्ड सेल इज कन्वर्ट, क्योंकि गार्ड सेल्स के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और गार्ड सेल के पास क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। तो डे टाइम में क्या होता है, जो स्टार्च बना उसमें वो स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, और उसके कन्वर्ट होने से जो ऑस्मोटिक कंटेंट है गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, उससे एंड ऑस्मोसिस होता है, वाटर अंदर जाता है और स्टोमेटास खुल जाते हैं।
नाइट के टाइम क्या होता है, जो हमारा कन्वर्जन हुआ शुगर में, स्टार्च जो शुगर में कन्वर्ट हुआ था डे टाइम में, रात को शुगर जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में। और दिन में क्या हुआ था, एन ऑस्मोसिस हुआ था, रात को क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, इसमें जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, और में स्टीवर्ड ने उसमें जो था लॉयड ने भी इसको स्टडी किया, तो उसने कहा कि डे टाइम पे जो स्टार्च है गार्ड सेल्स का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन, स्टार्च ऑफ द गार्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, राइट। व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू शुगर, उससे जो गार्ड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक कंटेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उससे क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होती है, वाटर अंदर जाता है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्टोमेटा खुलेगा, उससे स्टोमेटा खुल जाता है, राइट। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, शुगर कन्वर्ट बैक हो जाती है इनटू स्टार्च, तो एक्सोस्मोसिस होगा और स्टोमेटास क्या होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जब आपका जो डे टाइम में क्या होता है, जब स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब इसमें एक्चुअली जब स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है डे टाइम पे, तो उससे क्या होता है, इसमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो एंडोस्मोसिस होगा। और इससे क्या होता है, जब रात को क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली एकमुलेट हो जाती है गार्ड सेल्स में, उससे क्या होता है, जो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ने से जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, उसको फेवर करता है वो, तो एक्सोस्मोसिस होता है और स्टोमेटास क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये हाइपोथेसिस जो था, दैट इज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, बिकॉज स्टोमेटास का ओपनिंग एंड स्टोमेटा क्लोजिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। वेरेज अगर हम देखें कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है एंड शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही क्या है, स्लो प्रोसेस है। सो ये हाइपोथेसिस जो था दैट वाज डिस्कार्डेड। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रही है, दैट इज नोन एज पोटाशियम आयन पंप थ्योरी। सो पोटाशियम आयन पंप थ्योरी जो है दैट इज गिवन बाय लेविट 1974। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास जो हैं दैट इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। पोटाशियम आयंस जो हैं उनका इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटाशियम आयंस जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, और पोटाशियम आयंस के अंदर जाने से ही स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास पता है कि जो हमारे इनकी जो गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है गार्ड सेल्स में, तो स्टार्च हमारा बन गया। देन क्या होगा, जो स्टार्च बन गया, स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मैलिक एसिड, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जब डिसोशिएट होता है तो वो क्या बनाता है, प्रोटॉन्स बनाता है और मैलेट बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है, ये रिएक्शन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर चल रहा है। अब जो हमारे एग्जिट किसका हो रहा है, जो प्रोटॉन्स जो बने हैं उनका क्या हो रहा है, वो एग्जिट हो रहा है। जब वो एच आयंस जो हैं या प्रोटॉन्स जो हैं जब वो गार्ड सेल से बाहर आएंगे, तो उसके साथ क्या होगा, पोटाशियम आयंस का एंट्री होगा। स्टूडेंट्स क्या मैं कह रही हूँ कि एंट्री किसका हो रहा है, अंदर इन्फ्लक्स किसका हो रहा है, पोटाशियम आयंस का हो रहा है। वाई, बिकॉज ऑफ द एग्जिट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। सो हाइड्रोजन आयंस का मैं फिर यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, यहाँ पे इन्फ्लक्स किसका हो रहा है, पोटाशियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है। वाई, बिकॉज ऑफ एग्जिट किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस का। सो हमने अभी आपको बताया कि जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस के कारण हो रही है इनटू द गार्ड सेल्स। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन स्टार्च इज प्रिपेयर्ड, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड डिसोशिएट हो गया इनटू हाइड्रोजन आयंस और मैलेट आयंस। सो ये हाइड्रोजन आयंस मूव आउट हो जाएंगे फ्रॉम द गार्ड सेल्स एंड देयर विल बी एंट्री ऑफ पोटाशियम आयंस इनटू दिस। सो जो पोटाशियम आयंस अंदर जाएंगे, सो पोटाशियम आयन क्या करेंगे, अंदर हमारे पास मैलेट पड़ा है अभी, सो वो मैलेट के साथ कंबाइन करेंगे और बनाएंगे पोटाशियम मैलेट, ठीक है। पोटाशियम मैलेट बनने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस होगा, वाटर एंटर करेगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और स्टोमेटास क्या करेंगे, वो ओपन हो जाएंगे,
राइट तो आपको समझ आ गया किस तरह से पोटेशियम मैलेट बन रहा है, स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके डिसोसिएशन से मैलेट आइंस और हाइड्रोजन आइंस बन रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस बाहर निकल रहे हैं और इन्फ्लक्स किसका हो रहा है, पोटेशियम आइंस का, और वो पोटेशियम आइंस मैलेट के साथ मिलके पोटेशियम मैलेट बनाएंगे और पोटेशियम मैलेट जो है स्टूडेंट्स उसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड ऑस्मोसिस होगा, स्टोमेटास जो है वो ओपन हो जाएंगे, राइट। देन नाइट में क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा सो पोटेशियम आइंस जो हैं वो एग्जिट करेंगे, वो बाहर आ गए। अब आप देखो पोटेशियम आइंस जो हैं वो बाहर आ गए हैं। पोटेशियम आइंस के बाहर आने से क्या होगा, तो वाटर ऑल्सो लीव्स द गार्ड सेल्स, तो एक्सऑस्मोसिस होगा, तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और जो हमारा स्टोमा खुला था दिन में वो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास टेक्स प्लेस। नाउ there is a very interesting process that is known as guttation. गुटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स के जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स में कई बार जो है वो जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। सो रात के टाइम पे कई बार ये क्या होता है कि रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसके कारण रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बट ट्रांसपीरेशन नहीं होता रात को, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत लो है, तो उसके कारण क्या होता है कि रूट प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो ट्रांसपीरेशन। सो वाटर क्या करता है, जब रूट प्रेशर बढ़ गया सो because of that there is a loss of water, so water loss होगा in the form of water droplets। यहाँ पे water vapors की फॉर्म में पानी बाहर नहीं आएगा, droplets की फॉर्म में आएगा because of the high root pressure, और इसको हम बोलते हैं गुटेशन, ठीक है। सो ये नॉर्मली वार्म ह्यूमिड नाइट्स में होता है। सो रूट प्रेशर के कारण वाटर जो है वो बाहर आता है, और स्पेशल ये पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, इन पोर्स को हम हाइडाथोड्स कहते हैं, दे आर नोन एज हाइडाथोड्स। सो हाइडाथोड्स जो होते हैं स्पेशल पोर्स हैं जो लीफ एजिस पे होते हैं, राइट। सो दिस प्रोसेस जो है ये ट्रांसपीरेशन से डिफरेंट है, अभी हम करेंगे, इसको हम कहते हैं गटेशन, और जिसमें कि वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज नोन एज गटेशन। सो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया, आप इसमें गटेशन देख सकते हो, लीफ मार्जिन के ऊपर किस तरह से वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, राइट। Okay, so this is now there is a difference. Let's study what is the difference between transpiration and guttation. Now it becomes very clear to you students. Transpiration जो है वो क्यूटिकल, लेंटिसेल्स और स्टोमेटा से होती है, और ये स्पेशल पोर से होती है जिसे हम हाइडाथोड्स बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन डे टाइम पे होता है यूजुअली, ये रात को भी होता है, ठीक है। रात को क्यों होता है, बिकॉज हाइडाथोड्स तो हैं वो तो हमेशा खुले ही रहते हैं, जबकि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है डे एंड गटेशन जो है वो यूजुअली जो है वो नाइट में होता है, ठीक है। दैट इज़ अपना, क्योंकि एक्चुअली जो गुटेशन जो है स्टूडेंट वो एक तरह से वो अनकंट्रोल्ड होता है, बिकॉज हाइड्रोथोड्स हमेशा ही ओपन रहते हैं, जबकि ट्रांसपीरेशन एक कंट्रोल्ड है, कब स्टोमेटा खुलेंगे और कब बंद होंगे। तो इसमें वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, इसमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, वाटर लॉस इसमें प्योर होता है। सो इसमें वाटर जो है इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इसके कारण कूलिंग इफेक्ट है, जबकि गटेशन जो है वो कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं देता। इट इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। सो ये लेस सिग्निफिकेंट है प्लांट्स को, एंड समटाइम्स ये इंजरी भी कॉज करता है बाय डिपोजिशन ऑफ सम सॉल्ट्स ऑन द लीफ टिप्स। सो ये जो है इट अकर्स ड्यूरिंग द ड्राई डे, और ये ह्यूमिड पीरियड्स जो हैं वो उसमें होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी सम, कुछ हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपीरेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे विंड और एयर मूवमेंट है, ठीक है। सो अगर ज़्यादा एयर मूवमेंट हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। देन उसके बाद सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, अगर हमारे पास मॉइस्चर लैक कर रहा है सो प्लांट्स जो हैं वो प्री मेच्योर एजिंग शुरू हो जाएगी, और उस तरह से उसका ट्रांसपीरेशन जो है वो भी लेस वाटर ट्रांसपायर करेगा, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर प्लांट्स को मॉइस्चर ही नहीं मिल रहा तो वो सेनिसेंस शुरू कर देंगे, सो उसके लीफ लॉस शुरू हो जाएगा और ट्रांसपीरेशन जो है वो भी लेस होगा। देन ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है हाई होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन फॉल होगा, बिकॉज ऑलरेडी बाहर का जो वाटर है उसमें वाटर वेपर्स हैं, ऑलरेडी वो ह्यूमिड है। सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो ह्यूमिड वेदर में क्या होता है, वो कम होता है, जबकि जब एयर ड्राई जब होती है तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है।
देन स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ़ लीव्स हैं। नंबर ऑफ़ लीव्स अब जैसे हम डेजर्ट प्लांट्स में या ज़ीरोफाइट्स में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि लीव्स जो हैं दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस। तो जब क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है वाटर का स्कासिटी है तो वो प्लांट का वो अडेप्टेशन है, वहाँ पे क्या होता है कि थिक क्यूटिकल होती है प्लांट के पास और उसका लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है, तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो कम होता है, रिड्यूस हो जाते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। देन स्टोमेटा, अगर ज़्यादा स्टोमेटा है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। साइज ऑफ लीफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लीफ बड़े साइज़ का है तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन फास्ट होगा। अगर लीफ जो है वो नीडल्स के फॉर्म में है, बहुत छोटे हैं तो सरफेस एरिया कम है तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो कम होगा। एंड क्यूटिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया कि अगर थिक क्यूटिकल है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी या बहुत कम होगी। सो जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो हैं या ज़ीरोफाइट्स में उसमें थिक क्यूटिकल है, उसमें लीफ बहुत हार्ड और लेदरी होता है तो उसके कारण उसमें संकन स्टोमेटा है या वैक्सी कोटिंग है। सो ये सारे लीफ के स्ट्रक्चर हैं या क्यूटिकल थिक है तो वो ट्रांसपीरेशन जो है उसको रिड्यूस कर देगा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सबसे पहले मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप बताया था कि जब एसेंट ऑफ सैप किसके कारण होता है, एसेंट ऑफ सैप जो है वो ट्रांसपीरेशनल पुल के कारण ही हो रहा है, ठीक है। सो ट्रांसपीरेशन से एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है जिससे कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो जा रहे हैं ऊपर, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इससे जो प्लांट को कूल रखता है ऑन द हॉट वेदर, ठीक है, इवेपोरेटिंग कूलिंग है। इवन जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके टाइम पे, रेस्पिरेशन टाइप के जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसको भी ट्रांसपीरेशन जो है वो सपोर्ट करता है। एंड इट हेल्प्स मेंटेन्स द लेवल ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो ट्रांसपीरेशन इज अ very very important phenomenon. Okay, so that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. It was very very interesting lecture. We studied about transpiration, its importance, different types of transpirations, guttation, and a very important process that how the stomata opens and the closes. So thanks for watching. Have a nice day students.